5-star QS rank employability, and the only university in UK that has rated 5-star QS for even for the online learning. We always put students' need first. That's why we are gold rated for overall student experience and teaching framework. We have recently joined top modern university for career prospects. We have 5-star QS ranking for inclusiveness. That means Coventry University is the only university which has the maximum number of international students. That is why we are the number one in the UK for international student diversity. Number one in the England, top 20 modern new universities. If we talk about the campus, we do have many campus in UK, but we have 3 campus for Coventry University. 2 are in the UK. One is Coventry, of course, which is the main campus. We do have the other campus in London as well, and we have other main campus in Wrocław, Poland. Apart from the university chain, we do have the CUG group, in which we have 4 campuses. One is in Coventry, 2 is in London, that is Greenwich and Dagenham, and the 4th one is in Scarborough. So, guys, these are few of the advantages of Coventry University group, that flexible and adaptive teaching. Can anyone confirm if I should continue this in English or a bit of Okay, that's fine. ठीक है, so CUG group के कुछ sorry advantages हैं, that is student will be graduated from a Coventry University degree. This is the very first perk. The second perk is CUG group के 6 entry points है, whereas main campus के UG courses के लिए सिर्फ 3 एंट्री पॉइंट्स हैं, पीजी कोर्सेज के लिए 6 एंट्री पॉइंट्स है. बट यहाँ पे CUG ग्रुप में स्टूडेंट can enter the university via 3 entry points per year. यहाँ पे कोई end of year exam नहीं है. Most courses have embedded professional qualification. यहाँ पे बच्चे को 20 hours per week, including tuition, including employability, tutorials and success coaches. That is, अगर student की classes हो रही हैं 5 घंटे दिन में, तो they can study 2.5 घंटे from their campus, 2.5 घंटे from their accommodation. So this is the perk, the flexibility is there. And since like mentioned कि यहाँ पे कोई end of year exam नहीं है, so they can complete their degree in 2 years or 2.5 years as well. So I guess these are few updates जो 2025 में introduce हुए हैं. First is we have introduced 3 additional PG के intakes in the Coventry main campus and the London campus. We have 3 UG intakes in the main campus and in the London campus, and 6 UG intakes in the CUG group. Right? So if we talk about the scholarship, ये scholarship September and November की थी, but it will more or less be same in 2026 as well. The main campus की scholarship है is 4,000 in 3 years, that is 2 + 1 + 1. And जो PG की scholarship है, that is 2,500 pounds. अगर CUG में जाता है student, there always a perk कि वहाँ पे scholarship हमेशा ज़्यादा होती है. So the scholarship for CUG is 6,000 in 3 years, that is 2 + 1 + 2 + 2, 2,000 in each year. If we talk about the fees, so अगर मेन कैंपस या लंदन कैंपस में अंडर ग्रेजुएट की जितनी भी कोर्सेज हैं, उनकी फीस स्टार्ट होती है 16,800 से एंड गोज अप टू 19,850. पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज की जितनी भी फीस है, वो जितने भी कोर्सेज की फीस है, starts from 18,600, which is more of like MSc and MA, and goes up to 20,350, जो कि mostly are about MBAs. Apart from the main course, we also offer EPP, that is called placement year, which cost 1,800 pounds only. If we talk about the CUG group, another perk is all the courses, the fee starts from 14,800.
यहाँ पे पीजी कोर्सेज अवेलेबल नहीं है, बट यू माइट get a few option in 2026 that we have introduced a few of PG courses as well in the CUG group, which in a way comes with perks like low tuition fee as well. नाउ ये एंट्री क्राइटेरिया है अंडर ग्रेजुएट के लिए फ्रॉम इंडिया। अगर स्टूडेंट जनरल कोर्सेज के लिए जाता है लाइक बिजनेस कोर्स एंड जनरल कोर्स, they need 60% overall with no specific subject requirements. अगर उसको इंजीनियरिंग या HLC कोई की कोर्सेज में जाना है, they should have 60% overall and 65 in the key relevant subject. CUG ग्रुप में अगर स्टूडेंट को जाना है, इफ यू हैव एनी स्टूडेंट हु इज नॉट मीटिंग द डायरेक्ट एंट्री इन द मेन कैंपसेस, you still can refer them in the CUG group जिसकी requirement है 50% only for business and 55% in other subjects like if अगर आपके पास में 50% वाला कोई भी स्टूडेंट है, ट्रांसफर देम टू बिजनेस। अगर किसी भी स्टूडेंट को रेलिवेंट सब्जेक्ट टेक कोर्सेज के लिए जाना है, स्टेम कोर्सेज के लिए जाना है, दे should get at least 55 overall and 55 in the key relevant subjects such as maths, computer, physics for IT and science related course. PG courses की requirement is overall 60% if it's a 3-year undergraduate degree. It's 55% अगर उन्होंने 4 साल की डिग्री कंप्लीट की है तो। कुछ कोर्सेज भी हैं जिसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी ज्यादा है सच एज सोशल वर्क, जिसमें स्टूडेंट के 70% होने चाहिए इन यूजी डिग्री। ओके, अब इंग्लिश क्राइटेरिया की बात करें, सो फॉर Can I अंडर just ma'am, sorry if I'm disturbing. Ma'am, ये 1800 आपने जो एंट्री क्राइटेरिया पहले you just said 1800 pounds का कुछ, what was that exactly, ma'am? I missed that part actually. If you सॉरी, could just, ma'am, you just said there was some 1800 pounds before the entry criteria that you were explaining for UG and PG. You said there was 1800 pounds. What was that? Can you just repeat that once more? ओके, सो 1800 इज द प्लेसमेंट ईयर का फीस, राइट? जो फॉर एग्जाम्पल इफ अ स्टूडेंट वांट्स टू गो फॉर MSc मैनेजमेंट, उनका फीस होगा 18,600, राइट? अगर वो 1 साल की डिग्री होगी। इफ स्टूडेंट वांट्स मुझे प्लेसमेंट ईयर चाहिए, सो दे हैव टू पे 18,600 प्लस 1800, वो प्लेसमेंट ईयर का फीस है। ओके ओके, ठीक है, समझ गया। यस, इंग्लिश क्राइटेरिया अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए जो आइल्स की रिक्वायरमेंट है इज 6.0 विद 5.5 इन ईच कॉम्पोनेंट। PTE का रिक्वायरमेंट है 65 ओवरऑल विद 59 इन ईच कॉम्पोनेंट। कुछ ऐसे यूजी कोर्सेज भी हैं जिनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल इट्स इंग्लिश लिटरेचर, अदर एग्जाम्पल आर मीडिया, जर्नलिज्म, फैशन रिलेटेड कोर्स, राइट? इन सारे कोर्सेज की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। ओके, PG कोर्सेज में अगर कोई भी स्टूडेंट जाने चाहते हैं, दे शुड हैव आइल्स ऑफ 6.5 ओवरऑल विद 5.5 इन ईच कॉम्पोनेंट। PT का रिक्वायरमेंट इज 71 ओवरऑल विद 59 इन ईच कॉम्पोनेंट। अगेन देर आर सम कोर्सेज जिनका आइल्स रिक्वायरमेंट ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल MSc फिजियोथेरेपी एंड MA सोशल वर्क लाइक जर्नलिज्म एंड जिसमें आप इससे अंदाजा लगा सकते हो अगर ऐसे कोई भी कोर्सेज हैं जिसमें स्टूडेंट को कम्युनिकेट करना पड़ेगा, देयर हैंड्स ऑन प्रैक्टिस विल बी देयर, सो उसमें आइल्स का रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा। अपार्ट फ्रॉम आइल्स एंड PTE, हम अदर टेस्ट भी एक्सेप्ट करते हैं सच एज PVET, HLA, TOEFL, कैम्ब्रिज एंड IB। अगर स्टूडेंट को इसमें से कुछ भी नहीं देना है, उनके लिए वी हैव इंटरनल टेस्ट एज वेल विच इज नोन एज CUET। ये फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट होता है एंड सिंस ये फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है तो इसके स्लॉट्स बहुत लिमिटेड होते हैं, सो वी ऑलवेज रिकमेंड आप ऐसे स्टूडेंट को CUET रेफर करो जिनका आइल्स एक्सपायर हो चुका है, जिनका आइल्स या PTE में अगर उन्होंने दिया हुआ है तो एक आध बैंड में थोड़ा कम है, या फिर मेक श्योर कि आप एक बार स्टूडेंट से बात करके एटलीस्ट सेल्फ असेस करो कि स्टूडेंट अच्छा है और निकाल देगा।
ताकि हमारे जो स्लॉट्स हैं लिमिटेड हैं वो वेस्ट ना हो। फर्स्ट अटेम्प्ट इसका फ्री होता है, सेकंड अटेम्प्ट में देयर कुड बी सम फीस। ओके। वेवर, हम वेवर भी देते हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए। अगर स्टूडेंट किसी भी सेंट्रल या स्टेट बोर्ड से है, पंजाब सॉरी सेंट्रल बोर्ड लाइक सीबीएसई एंड आईसीएससी, स्टेट बोर्ड्स लाइक महाराष्ट्र, आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला, इन बोर्ड से है 60% मार्क्स उसको चाहिए इन इंग्लिश स्पेसिफिक सब्जेक्ट। कोई आईएलटीएस पीटी देने की जरूरत नहीं है। अगर पोस्ट ग्रेजुएट के लिए जाना चाहता है, बोर्ड्स रिमेन्स द सेम, उसको चाहिए सिर्फ 65 मार्क्स इन इंग्लिश, राइट। मेक श्योर कि जो ऐसे कोर्सेज हैं जिनका रिक्वायरमेंट आइल्स रिक्वायरमेंट ज्यादा है 6.0 से, कुछ कोर्सेज हैं जिनका आइल्स रिक्वायरमेंट ज्यादा है सच एज सोशल वर्क उसका, और वेवर सिर्फ उन कोर्सेज के लिए काम करता है जिनका रिक्वायरमेंट जनरल है, दैट इज 6.2। अगर कोई भी ऐसा कोर्स है जिसका आइल्स रिक्वायरमेंट ज्यादा है, 7 बैंड्स हैं या 6.5 है, उस केस में वेवर नहीं एप्लीकेबल होगा। Student, in that case, IELTS would be mandatory. We do accept MOI as well, but there is a specific list of the universities that we accept, and this is the list of universities. You can take the screenshot of this. Otherwise, I have shared the brochure with Ruxana ma'am, so that she can further convey it to you guys. There are some limitations with MOI, that is 2 साल से ज्यादा gap acceptable नहीं है। The format of LOR should be similar to LOR, university stems and everything उस पे होना चाहिए। Process remains the same. You submit the few documents, upload in the portal. Offer letter will be issued in 7 to 8 days. Student should pay the initial deposit of £4,000. They will receive, sorry guys, sorry guys. So they will receive the invite for the credibility interview. They have to record their interview, and if pass, they have to pay the remaining full fees to receive the CAS. Once the CAS arrive, they should apply for the visa and fly to the UK. Okay, now if we'll talk about credibility interview process, that the student should pay 4,000 deposits in order to receive the cash shield. एनरोली का लिंक आएगा स्टूडेंट को, अपनी 3 to 5 days आप लेके चले। कैश शील्ड का लिंक स्टूडेंट को तब आएगा जब जो 4,000 का डिपॉजिट है विल रिफ्लेक्ट इन द यूनिवर्सिटी का अकाउंट। ओके, उसमें यू हैव टू रजिस्टर, यू हैव टू क्लियर द इन क्वेश्चनर देयर, एंड फाइनेंस चेक अपने सारा क्लियर करना होता है। आफ्टर पासिंग द क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए अगर लो रिस्क रीजन का बच्चा है, दे हैव टू पे £8,000, दैट इज 4,000 वो ऑलरेडी पे कर चुके हैं, दे हैव टू पे द रेस्ट 4,000 फॉर कैश। अगर हाई रिस्क रीजन का बच्चा है, दैट इज पंजाब, हरियाणा एंड उत्तराखंड, they have to pay full fees excluding the scholarship that is applicable. For example, the course fee is 18,600. इंडिया का गुजरात का बच्चा है फॉर एग्जाम्पल, सो दे आर पेइंग 4,000 in order to receive the cash shield. After paying, they have to pay additional 4,000. उसमें स्कॉलरशिप नहीं होगा। अगर पंजाब का बच्चा है, सो दे हैव पेड 4,000 इनिशियली, सो अपनी स्कॉलरशिप हटा के उनको बाकी रिमेनिंग फीस पे करनी है। Now, credibility interview. It is an AI recorded interview. Duration is 30 minutes. 16 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 3 रीसेट्स अलाउ होंगे अगर कोई भी डिसेप्शन का केस नहीं है तो। यहाँ पे मैं कुछ गाइडलाइंस आपको शेयर करूंगी फॉर अ सक्सेसफुल इंटरव्यू, कि मेक श्योर कि स्टूडेंट आपके ऑफिस से इंटरव्यू दे ताकि कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन, कोई बैकग्राउंड नॉइस वगैरह ना हो। और इसका कोई जनरल कोई क्वेश्चनर नहीं है दैट यू कैन शेयर और वी कैन शेयर टू यू, बट मेक श्योर कि स्टूडेंट को पता हो अपनी
वाई ही इज गोइंग टू यूके, अपनी कोर्स अंडरस्टैंडिंग हो, उसने कोर्स मॉड्यूल अच्छे से पढ़े हो यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे, यूनिवर्सिटी चॉइस रीजनिंग का उसको पता हो। फॉर एग्जाम्पल वो कंपैरिजन बेस्ड करे, बिकॉज एआई पे जो क्वेश्चन आते हैं आर नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड। उनसे ये नहीं पूछा जाएगा व्हाट इज योर नेम, वाई कोवेंट्री, वाई दिस कोर्स, नो, इट विल नॉट बी वेरी इजी, और बहुत डिफिकल्ट भी नहीं होगा। सो ऑलवेज प्रिपेयर स्टूडेंट to be ready for the comparison based question. For example, उनसे straight question नहीं पूछा जाएगा why Coventry, rather the question will be like what all universities did you considered, then choose Coventry University. So अगर question में पूछा गया है उनसे कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपने कंसिडर की थी, they have to name a few university. For example, they can say like I consider University X, University Y, and then Coventry University. So University X has this sort of a ranking, University Y has this ranking, Coventry has this ranking. University X hold silver rated in TEF, and Coventry use gold rated TEF. So these are the pointers they have to make sure. अगर क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट पार्ट टाइम जॉब्स, दैट आप कौन से पार्ट टाइम जॉब्स करोगे, नेवर एवर आंसर दैट कि मैं पार्ट टाइम जॉब नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। दे वांट टू चेक हाउ मच नॉलेज यू हैव अबाउट पार्ट टाइम, आपने कितनी रिसर्च की है। सो स्टूडेंट को ये आंसर नहीं करना है कि नो नो आई हैव सफिशिएंट फंड्स, मैं जॉब नहीं करूंगा। उनको कुछ नाम लेना पड़ेगा कि मैं ऐसी जॉब चुनूंगा या चुनूंगी कि जिसमें फिजिकल वर्क ना हो, जो कि मेरे एकोमोडेशन से या मेरी यूनिवर्सिटी के नियर हो, जिससे कि मेरा स्टडी पैटर्न हैम्पर ना हो। राइट, सो दी अगर स्टूडेंट एड्रेस करे, जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है अकॉर्डिंगली करे, तो उसमें यही काम करेगा। प्लस बहुत सारी जगहों पे हमने देखा है स्टूडेंट आर ऑलवेज इन हरी वाइल अटेम्प्टिंग द एआई इंटरव्यू। स्टूडेंट को बताओ कि कभी भी अपने साइड से आंसर सबमिट ना करे। फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन आया और उनको टाइम मिला डेढ़ डेढ़ मिनट का या एक मिनट का, तो उसमें क्या होता है कि स्टूडेंट ने 20 सेकेंड्स का आंसर किया एंड देन ही सबमिटेड, इसमें कोई मार्किंग नहीं होती है। तो अगर आपको आंसर मिला है डेढ़ मिनट का या एक मिनट का, बोलते रहो और रेलिवेंट बोलो, ये नहीं बोलने के लिए आप कुछ भी बोलो, रेलिवेंट बोलो, अपने साइड से सबमिट ना करो, बिकॉज इसमें दो ड्रॉबैक होते हैं। एक तो उस क्वेश्चन की मार्किंग नहीं होती, द सेकेंड ड्रॉबैक इज कि एट लास्ट वो एक टेक पोर्टफोलियो है, एक वेब ब्राउजर है एनरोली। तो समटाइम्स आपने सबमिट किया और आपका नहीं हुआ, स्टूडेंट दोबारा से सबमिट करता है, तो उसके 3 से 4 क्वेश्चन स्किप हो जाते हैं। सो उसके उन नेक्स्ट 3 से 4 क्वेश्चन की भी कोई भी मार्किंग नहीं होती है। सो ऑलवेज रिकमेंड स्टूडेंट गाइडलाइंस की, एक तो वो पढ़े, अपने यूके के बारे में पढ़े, अपने कोर्स के बारे में पढ़े, यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़े, अपने कैंपस के बारे में पढ़े। कई बार देखा है कि उनके स्पेसिफिक कैंपस के बारे में आती है, जैसे व्हाई डिड यू चूज डाइगनम कैंपस, तो उसमें स्टूडेंट आंसर करते हैं ओवरऑल कोवेंट्री, वो डाइगनम की बात ही नहीं करते। राइट, तो उनको अपने कैंपस की नॉलेज हो और कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन ना हो, कोई भी ना। ऑलवेज मेक श्योर वो लैपटॉप से अपना इंटरव्यू रिकॉर्ड करे, काफी सारे स्टूडेंट मोबाइल से रिकॉर्ड कर देते हैं, तो उसमें भी एआई ट्रैक्स एंड उसमें वो डिसेप्शन होता है। राइट, और इसी में ही हो, अगर कोई पास्ट वीजा रिफ्यूजल है उसके बारे में हो, ट्रैप क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। दे शुड बी रेडी अबाउट द करियर प्लान्स, देयर वर्क प्लान्स, उनको वर्क राइट्स के बारे में पता हो, यूके वीआई की क्या गाइडलाइंस है वो पता हो, एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट इन द यूके उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पता हो। राइट, अपार्ट फ्रॉम इट यूनिवर्सिटी के एकोमोडेशन है अपने, जो कि यूनिवर्सिटी ओन्ड है, जिसको हम बोलते हैं हॉल्स ऑफ रेजिडेंट, दैट इज लोकेटेड इन 4 लोकेशन, बिशप गेट, द साइकिल वर्क्स, गॉडीबा पैलेस एंड पैरिश रूम्स। ये कोवेंट्री और मेन लंदन कैंपस दोनों में अवेलेबल है। एंड ये जो एकोमोडेशन है सीयूजी के बच्चे भी इसको अवेल कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट सेज
मुझे नहीं लेना है यूनिवर्सिटी एकोमोडेशन, इन दैट सिनेरियो एज वेल यूनिवर्सिटी का प्राइवेट एकोमोडेशन भी है इन द कोलैबोरेशन विद फ्यूचरलेट्स, जो कि स्टूडेंट कैन स्टिल ऑप्ट. Yes, so these were some basic requirements and updates which I wanted to give you guys about Coventry. Now I'm up for the question. So anyone of you has any question, you can unmute yourself or you टीम, आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं आप मैडम से पूछिए। और ये जो मैम ने जो एआई इंटरव्यू की जो चीजें बताई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली तो हर यूनिवर्सिटीज आजकल एआई इंटरव्यू लेती है और अक्सर देखा गया है कि अच्छे से स्टूडेंट्स देता है, स्टिल प्रॉब्लम आती है। तो ये जो कुछ चीजें मैडम ने बताई कि स्टूडेंट रीड नहीं करता क्वेश्चंस या फिर वो हड़बड़ी में क्वेश्चंस के पूरे जवाब दिए बिना नेक्स्ट कर दे, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो स्टूडेंट्स का अक्सर इंटरव्यू में दिक्कत होती है। तो ये खास करके आपको स्टूडेंट को बताना है, राइट? सो दिस इज वन। और किसी को कुछ क्वेश्चंस है तो प्लीज गो अहेड एंड आस्क। सीयूजी और कोवेंट्री में अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है आप लोग को, वो क्लियर है? सीयूजी अलग है, कोवेंट्री यूनिवर्सिटी अलग है, उसकी रिक्वायरमेंट्स भी अलग है, ट्यूशन फीस अलग है, स्कॉलरशिप अलग है, दोनों काफी डिफरेंस है इसमें। किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? किसी को कोई केस डिस्कस करना है? नहीं, मुझे ना मैम वो सिर्फ ट्यूशन फीस का ही उन्होंने बोला ना, जो पंजाब, उत्तराखंड और एक जगह बोली उन्होंने हाई रिस्क स्टूडेंट्स है। Okay guys, so अगर किसी को भी कोई भी क्वेश्चन नहीं है, so I will take it as a compliment for me that I was so thorough throughout the meeting. So thank you. Anyway, you all have my number, I guess. So अगर आपके पास में कोई भी concern आता है, feel free to reach to me. Okay? थैंक यू। Thank you everyone. Have a good day. Thank you, ma'am. Rupta, hello. Ritesh had a question. अरे मैम क्वेश्चन नहीं था। हाँ, रितेश का क्वेश्चन था। हाँ, वो कुछ पूछ रहा था और फिर एग्जैक्टली मैम, थैंक यू, यू वर हियरिंग मी राइट। मुझे लगा मेरा स्पीकर खराब है मैम, मैंने मैं ये नहीं, I was like, I can hear you, maybe she couldn't for some reason. आई जस्ट वांटेड टू कंफर्म मैम इफ यू रिटन, मुझे आप बताओ ना, वो जो फीस उन्होंने बोला, वो जो हाई रोड स्ट्रक्चर्स है उसमें 4000 जो हाई रोड में नहीं है, हाई रिस्क जोन में नहीं है, वो 4000 कैश के लिए पहले पे करेगा और बाद में वो 4000 डिडक्ट करके बाद का अमाउंट पे करेगा, और जो हाई जोन में है वो 4000 Wait, उसका। this is very technical, you ask her only. But I think you'll have to maybe call her and ask, you know. But I heard you. I heard you say something, and but then थैंक यू सो मच, ऐसे सुनते रहना मेरे को, है ना। I was gonna say that, but she immediately left. I was gonna say कि one of my colleague has a doubt, but she left only. So no. थैंक यू सो मच।